students, how are you all? I hope you are well and understanding our videos, our PDF also, and completing your studies well, completing your question answers well. Okay, so in this video we'll be starting with chapter number 7, that is fair play. And before starting this chapter, let's read these lines. Has your best friend ever done something you thought was wrong? What did you do then? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? So now writer is asking us a one good question कि कभी आपके फ्रेंड ने कुछ ऐसा किया कि जो आपको लगे कि वो गलत है, एंड इफ़ इट इज़ सो दैट व्हाट डिड यू डू देन. अगर आपको लगा कि आपके फ्रेंड ने कुछ गलत करा, आपके फ्रेंड को माइट भी सही लगा होगा, बट आपको अगर वो गलत लगा एंड माइट बी इन रियलिटी द वर्क व्हाट ही एंड शी हैज़ डन या समथिंग व्हाट शी और ही हैज़ डन माइट बी रॉन्ग, बट उनको नहीं रियलाइज़ हो रहा कि वो गलत है. तो कभी आपने अपने फ्रेंड को जाके बताया कि नहीं, जो आपने ये काम करा है वो गलत है या रूड है या ये सही तरीका नहीं है, या आप अपने फ्रेंड को कुछ भी नहीं बोला, आप बिल्कुल चुप रहे. सो कभी आपने ऐसा करा हो? जस्ट रिमेंबर. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. Read this story about two friends who had decided what was more important, friendship and enmity. Enmity means enemy, or a sense of what is right and what is wrong. So this is a story. In the story we will see two friends who decide that what was important. उन दोनों के ऊपर डिसीजन था कि वो किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, फ्रेंडशिप को इम्पोर्टेंस देते हैं या एनिमी को या एनमिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, और या वो सिर्फ एक ऐसा थॉट होता है. फ्रेंडशिप ऑफकोर्स फ्रेंडशिप है, या अगर कोई एनिमी भी सही काम कर रहा है तो अपन उसको गलत नहीं कहेंगे. तो दिस इज़ अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. अगर आपका फ्रेंड अगर गलत कर रहा है एंड आप अगर उसको बता रहे हो, सो यू हैव द सेंस दैट व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग. ये नहीं कि अगर आपका फ्रेंड अगर कुछ रॉबरी कर रहा है या कुछ उसने ऐसा गलत वर्ड्स कह दिए तो आप उसको कहो कि नो यू आर राइट. सो दिस इज़ नॉट डन. सो लेट्स सी दिस स्टोरी दैट हाउ टू फ्रेंड्स decided what is right and what is wrong. So the name of the chapter is Fair Play, Part 1, Paragraph 1. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were the two friends. So who were the two friends? Juman Sheikh and Algu Chaudhary. जब अपन ने ये स्टार्टिंग में ये पढ़ रहा है कि रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स, तो ये दो फ्रेंड्स के बारे में बात करेंगे अपन इस पूरे चैप्टर में. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. So now this is a story of two friends whose bond were very strong. जो रिलेशनशिप है फ्रेंडशिप का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. कितना स्ट्रॉन्ग था तो ये एग्जाम्पल कैसे दिया कि इफ़ वन ऑफ देम इफ़ वेंट अवे मीन्स कोई might be due to some work, might be some or another reason. When one family is out or one of the friend is out, another friend looked after means take care of the family of another friend, and they were so good that rest of the villagers also respect them. Second paragraph. Juman had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. So now Juman, one of the friend, had a old aunt. एक उनकी कोई रिलेटिव है जो कि काफ़ी ओल्ड है, उनके पास प्रॉपर्टी है, एंड शी हैज़ ट्रांसफर्ड मीन्स शी हैज़ गिवन हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन. On what condition? That she will live with him and till the death of that aunt, Juman will look after him.
Oh, sorry, look after her. Next, let's continue from the paragraph. The arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. Juman and his family were tired of old relative. Juman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed the insults along with her food for few months. Okay, so now the narrator is saying us that the old aunt was happy every arrangement means जो उन्होंने जिन कंडीशंस के ऊपर बात की थी, जो अरेंजमेंट उन्होंने की थी, उस पर वो कुछ सालों तक, couple of years means 2 years or 3 years, all were okay. But when after you can say couple of years the situation changed. Which situation changed? जो भी अरेंजमेंट की थी, जो अच्छी तरीके से अरेंजमेंट चल रही थी, मीन्स अगर वो अपनी प्रॉपर्टी अगर उसने दी है तो जुम्मन उनका अच्छी तरीके से उन ओल्ड आंट का ध्यान रख रहे थे. वो फैमिली would love to take care of that old aunt, but now that according to narrator सिचुएशन क्या बदल गई, कैसे बदली? दैट जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव. ओल्ड रिलेटिव मीन्स हियर ओल्ड रिलेटिव मीन्स ओल्ड आंट. जुम्मन बिकेम एज indifferent. Indifferent means it is written on your right hand side on orange or pink box. Became indifferent means lost interest in or did not care for. So now both Jumman and family didn't take care of that old aunt. या उनका जो इंटरेस्ट था कि हाँ हमको उस ओल्ड आंट का ध्यान रखना है, वो इंटरेस्ट उन्होंने खो दिया था. एंड दे ग्रज्ड मीन्स गेव अनविलिंगली, फेल्ट एंग्री या अनहैप्पी अबाउट गिविंग. मीन्स वाई दे आर टायर्ड? बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ गिविंग फूड. बेसिक यहाँ पे क्या बात हो रही है? ग्रज्ड इवन अ लिटिल फूड. कि जो वो आंट अगर थोड़ा सा भी खाना खा रही थी, दे वर अनहैप्पी, दे गॉट एंग्री और यू कैन से दे गॉट इरिटेटेड कि वाई शी इज़ लिविंग हियर, और खाना मांग रही है, हमको काम करना पड़ता है, एंड सो ऑन. एंड दैट पुअर ओल्ड लेडी, दैट आंट swallowed these insult means tolerated them, means उन्होंने ये सारी इंसल्ट झेली. एंड उसको कंपेयर किससे करा है? फूड से. कि मीन्स जैसे अपन फूड खाते हैं, अंदर लेते हैं, वैसी इंसल्ट्स उन्होंने ली, बट फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने तक. लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ, बट पेशेंस हैज़ इट लिमिट. मीन्स पेशेंस हैड इट लिमिट मीन कि ओल्ड आंट के बारे में बता रहे हैं कि जो उनकी पेशेंस थी, उनकी भी एक लिमिट थी. मीन्स वो भी शायद थक गई हैं ये ग्रजेस सुन के या ये बिहेवियर देख के, जुम्मन एंड उस फैमिली का. थर्ड पैराग्राफ, when one day she spoke to Jumman, my son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. Now when she was so sad, one day she went to Jumman and said that it is now obvious means clear, that I am very clear, you don't like me, you don't want to give me food, but for this I have made one decision कि now you will give me monthly allowance. Monthly allowance means some share of money. जो मनी उसके पास थी जुम्मन की, वो भी किसकी थी? ऑफ कोर्स ओल्ड आंट की थी. तो वो जो अलाउंस थी वो उन्होंने क्या कहा कि मेरे को उन पैसों में से मंथली अलाउंस दे दो आप, सो दैट आई कैन मेक अ सेपरेट किचन, आई कैन कुक फूड. नेक्स्ट पैराग्राफ, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली. नाउ जुम्मन इज रिप्लाइंग सो शेमलेसली मीन्स उसको कोई शर्म नहीं है, एंड ही इज़ वेरी रूड. वो कह रहा है माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस,
मेरी वाइफ को ज़्यादा अच्छा पता है कि घर कैसे चलाता है। बी पेशेंट मीन्स तुम थोड़ा सा रुको। एकदम से कह रहे, जब वो पैसे मांग रही तो कहते हैं कि मेरी वाइफ को सब कुछ आता है, तुम थोड़ा सा और रुको। लेट्स कंटिन्यू। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस to the village panchayat. Now seeing this rude and shameless reaction of, you can say, response of Jumman made her very sad, made her very angry. So she decided to take her case. Case means this problem, या जो issue था आंट को, ओल्ड आंट को, वो ये कह रही कि अब मैं ये विलेज पंचायत में लेके जाऊंगी। In earlier days there were no, you can say, courts. There is no police station everywhere, so there were village panchayat. Village panchayat has 5 members and more other people जो कि डिसाइड करते हैं what is wrong, what is right, किसी को क्या पनिशमेंट देनी है, किसी को क्या नहीं देनी है पनिशमेंट। 4th paragraph. For many days the old lady was seen talking to the villager, explaining her case and seeking their support. Some sympathized with her, other laughed at her, and few other advised her to make it up with her nephew and his wife. Now when she decided to go to panchayat, now she is explaining her case. Why she is explaining her case? Why old lady is explaining her case? So that someone can support her. क्यों? क्योंकि वो अकेली थी, उसके साथ कोई सपोर्ट में खड़ा नहीं था। जहाँ जुम्मन के साथ उसकी पूरी फैमिली थी, वहाँ आंट के साथ कोई भी नहीं था, कि ताकि उसको इस इशू में, इस केस में कोई सपोर्ट करे। तभी वो डिफरेंट विलेजर्स से हेल्प मांग रही थी। सीकिंग देयर सपोर्ट मीन्स लुकिंग फॉर सपोर्ट या फाइंडिंग सपोर्ट। एंड सो नो वन सपोर्टेड हर बट फ्यू सिंपथाइज्ड विद हर। सिंपथाइज मीन्स उनके साथ सहानुभूति दिखाई। दे फेल्ट सैड कि ओ आंटी इट इज़ वेरी रॉन्ग, यू आर वेरी सैड। एंड सम लाफ्ड एट हर मीन्स कुछ हंसने लग गए। कि कैसे हंस सकते हैं? जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आप इस उम्र में यहाँ पे पंचायत कर रहे हो, आपको इस उम्र में पैसे क्यों चाहिए, एंड सो ऑन। एंड सम एडवाइज्ड हर मीन्स उन्होंने काफ़ी उन्हें उन आंट को क्या सजेशन दिया, टू मेक इट अप with nephew and his son. Make it up means stop quarreling या come to an agreement with means आप ये issues छोड़ दो और एक अच्छा agreement बना लो, या एक आपस में कुछ plans बना लो कि जिससे आपकी quarrel means लड़ाई झगड़े ना हो and you live happy. Let's continue from the paragraph. At last she came to Algu Chaudhary and spoke to him. Now aunt came to Algu Chaudhary. Who was Algu Chaudhary? Just think. Yes, Algu Chaudhary was second friend. First was Jumman, second was Algu Chaudhary. Now that old lady came to Algu Chaudhary. Let's see what he talked, what the conversation they both had. At last she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know, Chachi, Jumman is my best friend. How can I go against him? Algu said. But it is right, my son, to keep mum and not to say what you consider just and fair. Now, Algu Chaudhary is saying कि that Chachi, you know it well. जो old aunt को है वो उसको चाची बुला रहा है कि चाची you know it well कि Jumman is my best friend. मैं कैसे उसके अगेंस्ट जाऊँ, मीन्स उसके खिलाफ कैसे बोलूँ। बट रिप्लाई में आंट उनको कहती है कि बट इट इज़ राइट, क्या ये सही है टू बी क्वाइट ऑन द रॉन्ग थिंग्स व्हाट योर फ्रेंड जस्ट डिड इट। क्या ये जस्ट एंड फेयर है? जस्ट एंड फेयर मीन्स क्या ये राइट है, क्या ये जितना जो भी उसने करा क्या ये इक्वल है। सो व्हाट डू यू मीन कि मम मीन्स क्वाइट। तो नाउ aunt is trying to convince Algu Chaudhary by saying that कि whether it is right or to be quiet when your friend is doing something wrong, it is वो पूछ रहे it is not your duty to tell him कि ये fair नहीं है। अपन कहते हैं ना fair game नहीं है। Okay, similarly let's continue. Oh, come to the here.
प्लीडेड, ओके, प्लीडेड मीन्स इमोशनल अप्रोच या बेग्ड मीन्स अगर एक होता है मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ तो वो ऑफर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। प्लीड मीन्स कि यू आर बेगिंग मीन्स आप किसी भी हालत में उनकी हेल्प चाहते हो। सो दैट ओल्ड लेडी प्लेडेड टू और कन्विंस द अलगू चौधरी। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। Algu didn't reply, but her words kept ringing in her ears. Now, after saying all this, again that old lady told Algu Chaudhary कि come on, let's go with me to the panchayat and speak the truth. What was the truth? Truth was that कि जो जुम्मन है एंड जो उनकी फैमिली है वो सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रही थी एंड उनका पहले ऐसा अरेंजमेंट हुआ था कि अगर ओल्ड आंट उनको पैसे देगी तो जुम्मन एंड उसकी फैमिली उनका केयर करेंगी, बट ऐसा नहीं था। तो यही जो सच है यही वो चाहती है कि अलगू चौधरी पंचायत को बताए। बट जब ये इतना सब कुछ ओल्ड आंट ने कहा, अलगू डिडंट रिप्लाई मीन्स उसने कुछ रिप्लाई नहीं करा, बट हर वर्ड्स, हर मीन्स ओल्ड लेडी के जो वर्ड हैं वो kept ringing in her ears, kept ringing in his ear means that words were bothering him. Bothering him means उसका ध्यान सिर्फ उस ओल्ड आंट के वर्ड्स पे था, वो बार बार सोच रहा था। So we end this part here. We'll be seeing in the next part what happened next. Till then, stay well, keep learning.